about another Congress party leader, and this is from Maharashtra, which has now sparked off a huge controversy with its leader Nana Patole now making an objectionable statement on the Ram Mandir. The Maharashtra Congress chief says that if the Congress comes to power, they will do a Shuddhikaran of Ram Mandir. In the recent past, Prime Minister Modi and President Draupadi Murmu, who visited Ram Mandir and offered prayers to Ramlalla in Ayodhya. राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और ये हमारा वक्तव्य नहीं है। हमारे देश के सनातन धर्म के हमारे मुखिया जो शंकराचार्य जी ने ये वक्तव्य को बार बार कहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, पूरी विधियाँ होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। Well, let me go to Shivani. Shivani is joining us live right now. Shivani, how do we understand the comments coming in from the Congress party leader? Because nobody from the Congress actually accepted the invitation to go to the Ram Mandir for the Pran Pratishtha in the first place. Now they are talking about it, Shuddhikaran. Well, definitely you have seen that how each and every single Congress was asked to not join the invitation or the Pran Pratishtha ceremony of the Ram temple in Ayodhya. And right now the very big statement has come from the Maharashtra Congress President Nana Patole, who clearly said that the purification of the entire temple will be done once there is an India alliance government which comes in power. And he has also mentioned that they will also be inviting all the Shankaracharyas and then do the purification. He has also mentioned that the way we do purification in our newly built houses, the same way Ram Mandir is idol to us, is a place of worship, and that's why the Shuddhikaran purification needs to be done, which is not done by the BJP because the entire temple is yet not been made. And definitely they say that the way inauguration has been done of the Ram temple is completely illicit, it is illegal, and henceforth it is not purified. All right. Please to stay on with us, Shivani. Let me go across to Rohan Gupta ji. Rohan Gupta ji, what is your take? Because Nana Patole now seems to be saying that if they form the government in the center, first thing that they will do is the purification or the Shuddhikaran of Ram Mandir. It is surprisingly shocking the way Congress leaders are going, beyond their narrative and trying to, insult Modi ji. I don't know what kind of statements they are making. First of all, Congress party decided to not go into inauguration of Ram Mandir. Now they are talking about Shuddhikaran of Ram Mandir. See, they are just, in opposing Modi government, they are just crossing the line. I think this is really insult to the PM of the country. First of all, you are not going to the inauguration of Ram Mandir. Right. Even if you are saying that you are respecting the verdict of Supreme Court, right, and now this kind of language for Modi ji and for the country, I think people are not going to accept this. This shows the mindset of Congress party. Right, sir. First of all, they are not going to Ram Mandir. Rohan ji, apologies, sir. I just have to interrupt you. Acharya Satyendra Das is with us on the phone line. Acharya ji, namaskar. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रहे बोलिए। आचार्य जी, ये नाना पटोले हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, महाराष्ट्र से आते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनी तो सबसे पहले वो राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाना चाहते हैं। जी, उनकी सरकार बनी तब ना, पहले सरकार उनकी बननी नहीं है और ये कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। अब रही बात, वो सोचते हैं क्यों उसकी शुद्धिकरण कराएंगे। शुद्धिकरण कराने का मतलब है कि कोई अशुद्ध हो गया क्या, और किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है और विधि विधान से उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई है। रामलला विराजमान हो गए हैं और भक्तों का जो दर्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार की उनकी मानसिकता दूषित है, वो मानसिकता की भावनाएं अपने को शुद्धिकरण, अपने खानदान को, अपने परिवार को और कांग्रेस को शुद्धि करें। उसकी अशुद्धि ने ही उनको ले डूबा है और इस तरह से जो बात बोलते हैं वह बिल्कुल गलत है और यहाँ कोई अशुद्धि नहीं है। यहाँ तो सब जो आते हैं दर्शन करते हैं और पूर्णतया शुद्ध रूप में है। अशुद्धि अपने करावें, अपने पार्टी के करावें, अपने खानदान के करावें, और यहाँ अशुद्धि कुछ नहीं है। मंदिर में जो कुछ है सब शुद्ध है। धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी इज ऑल्सो विद अस राइट नाउ। सर,
What would you say to the Congress party now? Because उनका direct निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, and the Shankaracharya saying that Shankaracharyas did not come for the Pran Pratishtha, hence there is a need for a purification or the शुद्धिकरण of the Ram Mandir. देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं ये मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं और इन्हें हिंदू शब्द से भी नफरत है, हिंदुत्व से भी नफरत है, इन्हें राम से, सनातन से, अयोध्या से, ये आज तक इनका कोई बड़ा नेता अयोध्या नहीं गया। इस बात का प्रमाण है कि इन्हें राम मंदिर की जो ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम मंदिर का जो निर्माण पूरा हुआ है, तो ये इनकी आंखों में खटक रहा है, इनको प्रॉब्लम है। ये नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में तो उनका जो संकल्प था वो केवल नरेंद्र मोदी जी का संकल्प नहीं था। राम मंदिर को पूर्ण करना, राम मंदिर बनाना, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का आधार है, ये उनका संकल्प था। तो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मंदिर निर्माण में, उससे कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं और इतनी नफरत करते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराने जैसी बात कर रहे हैं। अरे, अगर भगवान राम का नाम लेने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है, राम नाम के जाप से, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। यानी राम का नाम लेने से जिह्वा पवित्र हो जाती है, मुख पवित्र हो जाता है, मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। जिस राम के नाम से जीवन पवित्र हो जाता है, उस राम के मंदिर को अशुद्ध बता रहे हैं। वो राम मंदिर अशुद्ध है। तो मुझे लगता है कि इन सब ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। मोदी से नफरत करते करते ये भारत से और भारतीयता से, भारत की संस्कृति से, भारत के संस्कारों से और सनातन से नफरत करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला मैं इनको कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की शुद्धिकरण करें। जब तक कांग्रेस का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक इनके दिमागों का शुद्धिकरण नहीं होगा। लेकिन आचार्य जी, ये जो आस्था है, आपको लग रहा है कि अचानक से या तो जाग उठी है कांग्रेस में, या अभी भी वही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह सर जनवरी के महीने में हुआ था तब तो ये आए नहीं, बॉयकॉट कर दिया इन्विटेशन, और अब राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं, ये राम मंदिर की बात दिखावे के लिए करते हैं। इनकी आस्था, इनकी श्रद्धा राम में नहीं है। अगर राम में इनकी श्रद्धा होती तो राम मंदिर के निमंत्रण को क्यों ठुकराते? अगर राम में इनकी श्रद्धा होती तो मंदिर के निर्माण में 50 साल की बाधा क्यों डालते? मंदिर के निर्माण में बार बार रोड़े क्यों अटकाते? ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी रणनीति तो ये है कि कैसे भी एक बार दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाओ, कब्जा कर लो, उसके बाद राम मंदिर के फैसले का रिव्यू करा दो। ये सारे के सारे आपस में यही चर्चा करते हैं कि 370 को दोबारा लागू कर देंगे और राम मंदिर के फैसले का रिव्यू करेंगे। तो ये इनकी जो ये बातें हैं, ये बातें मैं समझता हूँ हिंदू जनमानस की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाली हैं, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली हैं और हिंदुस्तान को गुमराह करने वाली हैं। जी, क्योंकि आचार्य जी, हमने देखा कि जब पहले हर मौके पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे विपक्षी दल के कई नेताओं की तरफ से, कि प्राण प्रतिष्ठा अब क्यों हो रहा है, जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है, प्रेसिडेंट को क्यों नहीं इनवाइट किया जा रहा। अब तो प्रेसिडेंट भी आ चुकी हैं, वो भी दर्शन कर चुकी है, उसके बावजूद अगर शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं तो आखिरकार निशाना किस पे साध रहे हैं? इनका निशाना किसी पे नहीं है। इनका निशाना दो जगह है। एक तो दिल्ली के सिंहासन पर इनका निशाना है कि कैसे ही नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, नरेंद्र मोदी को हटा करके दिल्ली पे कब्जा किया जाए। दूसरा, राम मंदिर का रिव्यू किया जाए, दिल्ली के सिंहासन पे आकर के राम मंदिर के फैसले को बदला जाए। ये बहुत खतरनाक साजिश है। ये इतनी खतरनाक साजिश है, ये देश को तोड़ने वाली साजिश कर रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
So, of course, different versions are now coming out and all of them attacking the Congress and the Congress mentality as far as Nana Patole talking about Shuddhikaran of the Ram Mandir. But the biggest attack so far is now coming the counter from Prime Minister Narendra Modi himself. He's saying that Congress claims Ram Mandir is anti-national. Let's also listen into what the Prime Minister has to say on this issue. कांग्रेस की मानसिकता देखिए, ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर, जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम तो माता सबरी के पुजारी हैं। ये इंडी गठबंधन हमला ये मोदी पर नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था पर है। ये हमला आप पर है, ये मेरे देश के आदिवासियों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी देश से हिंदू आस्था को मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए, ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर, जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। Well, this is something that has also been mentioned by Prime Minister Narendra Modi in that mega exclusive that he spoke in this conversation with Times Network. We'll be playing that out. But here is the counter coming in to the Congress party. The Prime Minister has been calling it as a Ram Virodhi mindset of the Congress party. With that, we head into a short break.